Today our topic is of force. Force. Let us study about force. What is force? Force has formula mass into acceleration. Mass into acceleration. You know acceleration is of two types, negative and positive. Negative को आप retardation भी कह सकते हो. Okay. So from this formula, you can calculate its unit as well as dimension also. How? You know mass has unit kg and acceleration has meter second minus 4. So in this way, you can derive its unit kilogram meter per second square. Okay. Now convert this unit into dimension. Dimension कैसे बनाओगे? Dimension. Instead of kg, you have to put capital M. Instead of small m, meter for L, and for second, it denotes by capital T time. Mass, length, and time. Okay, and you have to take all these in big bracket, square bracket, and second power has -2. So in this way, T minus 2. You have to write down in this way. And one thing more here. This kilogram meter per second square is also, you can use capital N is here. Capital N means Newton. Okay, because discovery of force is given by Newton. That's why this unit in SI system, all these are in SI system and MKS, meter kilogram second. इसकी फॉर्म में आप सुना. And one thing again is here, CGS system. You can write okay. If you want to write this unit, MKS unit in CGS, then how you can write this? Instead of kilogram, you have to write kg, only gram. Instead of meter, you have to write centimeter, and instead of second, you have to again write second. This way, you can write the unit of force in CGS system. This is the unit of force in CGS system. Gram, centimeter, second minus 2 is the unit of force. But in CGS system, kilogram meter per second square is the unit of force in MKS system. Okay, and this unit like this is called Newton. This is called dyne. Okay, so another question is there. Dyne is the unit of which quantity? Which physical quantity? Force. Gram, centimeter, second minus 2 is the unit of which quantity? Force. Newton is the unit of which quantity? Force. Kilogram meter second minus 2 is the unit of which quantity? Force. So all these are the unit of force. Okay, got it? Every unit MKS system you can convert in CGS system also. Okay, like speed has unit meter per second. Okay, how will you convert this into? This is in MKS. This unit is in, because मीटर सेकंड से तो नहीं पता लगता, मीटर और किलोग्राम से गॉट इट. ओके, तो फोर्स के बारे में पता लगा आपको. न्यूटन, this one and that one, all these are the unit of force. Okay, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट एक्सेलरेशन में डायरेक्शन की बड़ी जरूरत है ना, डायरेक्शन. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी. इसी के बिहाफ पर देखो, एक्सेलरेशन को आपने स्टडी कर लिया, एक्सेलरेशन को स्टडी कर लिया, तो फोर्स, यस और नो, फोर्स को स्टडी क्या करना है? सिर्फ मास से मल्टीप्लाई करना है. अदरवाइज फोर्स भी क्या है? एक टाइप का एक्सेलरेशन ही है. और मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी, जिससे कम ज्यादा नहीं होना है. आपने क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई करा, एक्सेलरेशन को फोर्स बना दिया.
वेरी इजी कंसेप्ट, अगर आपको एक्सलेरेशन क्लियर है। ओके, अगर एक्सलेरेशन क्लियर है तो ये इजी बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, आफ्टर फोर्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्क और एनर्जी। इकट्ठे लिख रहा हूं इनको मैं, बिकॉज पढ़ने में अलग अलग है, समझने में अलग अलग है, बट कैलकुलेशन में एक जैसे। अभी वर्क को पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 9th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो मैथमेटिकली दोनों एक जैसे ट्रीट करें। तो नो डाउट इज हियर कि वर्क और एनर्जी का कंसेप्ट जो है आपने, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वर्क और एनर्जी को एक साथ ट्रीट करना है। तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, force, what is the unit of force? You know very well, kilogram meter second minus 2. From there, MKS में ही करना सारे काम, अगर CGS में वो कह रहा है, पूछ रहा है तो ही करना, otherwise all things you have to do in SI system or MKS system. Kilogram meter per second square is the unit of force and multiply it with unit of displacement. What is the unit of displacement? Displacement has unit meter. Okay, now from there you can write kg, meter into meter, power plus 1, power plus 1, both have power plus 1, base same, then power will be add meter square, and after that second minus. This is the unit of work or energy you can say, and kilogram meter square per second square, इसको जूल भी लिख सकते हैं, और ये जानते ही MKS सिस्टम में है, SI सिस्टम में। ओके, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू CGS. For CGS, kilogram becomes gram, for meter, centimeter square, and second as it is. You have to write this is the unit of work or energy in CGS system. But this thing you can also use ARC, ERG. ARG is the unit into displacement. फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के मीटर, तो फ्रॉम देयर न्यूटन मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ओके, न्यूटन मीटर, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MKS सिस्टम में है ये, तो MKS वाली और उठा लो ये, यानी कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 भी लिखा जा सकता है, और इसको जूल भी लिखा जा सकता है। तो दीज थ्री आर इक्वल, कौन कौन, न्यूटन मीटर भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी, और जूल भी। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कंपटीशन में आ जाते हैं क्वेश्चन। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, आपको वैसे तो पता होता है जूल होते हैं, लिखा अर्ग का नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह कुछ एक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपने ये समझा। वर्क भी यहाँ पर आप देखो, वर्क के बारे में आगे क्या पढ़ोगे आप, 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। आएंगे ये सभी चैप्टर, सभी फॉर्मूले दोबारा से आएंगे और डिटेल के साथ आएंगे, पूरा चैप्टर बनाएंगे। तो ये तो मैं आपको लिटिल बिट आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे को इसका यूज करके आगे सोल्व करना है सब कुछ, तो आपने बड़ा अटेंशन पे करना है। एनर्जी को लेकर 2 सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी के टाइप होते हैं। और उसके बाद साउंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारी टाइप्स होती है।
ये मैकेनिकल एनर्जी है और ये अदर देन मैकेनिकल एनर्जी होंगी, जितनी भी एनर्जी बाकी आप जानते हो, और सबके यूनिट जूल होते हैं। ठीक है, सबके यूनिट जूल होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होंगे। ठीक है, और सभी वर्क डन भी ऐसे ही होंगे। बाकी इनको इनकी एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। चलो, आफ्टर वर्क पावर। Now the next one is power. What is power? Work upon time. But which type of work? Or you can write here energy. Which type of energy? Work done. How much work is done in how much time? Energy, how much energy is consumed? देखो वर्ड होता है, खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है, वर्क किया जाता है, एनर्जी कंज्यूम करी जाती है। एनर्जी खाई नहीं जाती, एनर्जी करी नहीं जाती, एनर्जी कंज्यूम होती है। तो डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहते हो, रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी या कंजप्शन ऑफ एनर्जी by an device is called the power of that device. Rate of work done by a device is called its power. कोई भी मशीन है, कोई भी डिवाइस है, वो डिवाइस क्या करेगा? एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर क्या करेगा? काम करेगा। जितनी एनर्जी लेगा उतना वर्क डन करेगा। तो एनर्जी बराबर है कि नहीं? इस तरह आप ध्यान दो, एनर्जी और वर्क एक जैसे हो। एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क और टेंडेंसी टू डू वर्क। क्या मतलब है इसका? जितना काम करने की ताकत है, शक्ति है, क्षमता है, तुम्हारे जज्बा है, जितना काम कोई कर सकता है, वही उसकी एनर्जी। तो ये भी तो ये कह रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तो माइंड में फिट करके बैठ जाइए, एनर्जी और वर्क एक जैसे है। पढ़ने में अलग है, थोड़े फार्मूले भी अलग होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली कैलकुलेशन में वर्क को एनर्जी और एनर्जी को वर्क आप बोलेंगे। ओके, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। नाउ पावर इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ पावर निकालते हैं, यूनिट ऑफ पावर। तो इनकी भी यूनिट पुट कर दीजिए फार्मूले। वर्क के यूनिट क्या होते हैं? जूल, टाइम के सेकंड, दूसरी यूनिट भी लगा लीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, दिस सेकंड कम टू watt. Any doubt? This is also the unit of power in MKS system or SI system, you can say. Okay, joule per second. ये भी और ये। In CGS system, how can you write? Gram centimeter square second minus 2. In CGS system में जैसे उसको अर्ग दे रखा था ना, एनर्जी के यूनिट जूल है और अर्ग, इसके नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ, ध्यान से, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर।
तो आंसर होगा हॉर्स पावर, HP। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वॉट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए जूल। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें भी आ जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, then your answer is not joule, then your answer will be kilowatt hour। जानते हो इसको? किलोवाट आवर कहां पर यूज होती है? घरों में बिल आते हैं ना, जो बिजली के बिल आते हैं, उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं घरों में। 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई है हमारी, कितने यूनिट बिजली निकल गई, 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। और इसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 10th क्लास में है ये, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है 10th क्लास में। कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को इसके प्रूव करना है जूल। ओके, कहां से आई है ये यूनिट? वर्क के वैसे जूल होते हैं, तो यहां से देख सकते हो आप, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर के यूनिट किस में लिए? वाट में ना लेकर किस में ले लिए? किलोवाट में। टाइम सेकंड में ना लेकर आवर में। तो यहाँ से देखा जा सकता है वर्क और एनर्जी के यूनिट किलोवाट आवर भी होते हैं। ओके, ठीक है, गुड। चलो, आफ्टर दैट एक और बात करते हैं, इसके बाद प्रेशर। इसके बाद ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और थोड़ी बहुत और आगे आएंगी, वो साथ के साथ लर्न कर लेंगे। अभी हमें बस ये 12-13 ही चाहिए यूनिट डायमेंशन, जिसके बिहार पर आप अपनी फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी जो फिजिक्स के शुरू के चैप्टर है वो करने जरूरी नहीं है, वो सिर्फ रीड के लिए है। उनकी एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करना चाहो कर सकते हो आप, वो सिर्फ फिजिक्स के बारे में बताया गया है, स्कोप सिग्निफिकेंस उसके, ठीक है, उसको लेकर ज्यादा गोदर नहीं होना। उन्होंने लिख भी रखा है साथ में कि ये सिर्फ रीड करने के लिए है, एग्जाम में या कंपटीशन में इसके लिए कोई वो नहीं है, वो तो आपके इंटरेस्ट के लिए, बस आपको अगर पढ़ना है तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें। 3 लॉ मिलेंगे आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्सेस मिलेंगी, चार्ज, दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे होती है, ओके, 2 बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल होती है, 2 चार्ज के बीच में कूलम फोर्स होती है, और हाँ न्यूक्लियर फोर्स मिलेगी, वीक और स्ट्रॉन्ग। यू नो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर चिपके हुए बैठे रहते हैं एटम के अंदर, तो वो किस फोर्स से बैठे हुए हैं? उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जो घुमा रही है चारों तरफ, तो वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। चलो पढ़ लेना, उनके बारे में कोई ज्यादा वो नहीं है फिजिक्स के वो। इसके बाद प्रेशर। प्रेशर, पावर को भी पी से डिनोट करते हैं, प्रेशर को भी। और फिजिक्स में जहां भी पी वी ए कुछ भी लिखा होगा उसके साथ लिखा जरूर होता है कि एक्सेलरेशन है, यहाँ पर एम का मतलब मास है, ठीक है, ये सब कुछ लिखा होता है। तो ये मत सोचना सर ये पी आ गया, पी का मतलब प्रेशर, वो आसपास पढ़ के पता लगता है कि ये पी है या वो प्रेशर है या पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। आप फार्मूला तो देख लेते हो फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन कौन सी एरिया, इस चीज को जरूर, फोर्स लगा दी, ये लो, ये हाथ लगा दिए इसके ऊपर, ऐसे दबा दिए, क्या कौन सा होगा? फोर्स तो मेरी हो गई, कौन सा होगा? ये पूरा बोर्ड नहीं होगा, एरिया होगा जितना बड़ा ये मेरा हाथ है, दिस एरिया, ऐसे जो ये टच हुआ है, यानी कि कॉन्टेक्ट एरिया आप कहते हो। कौन सा एरिया? देखो फार्मूलों को पढ़ना सीखिए। फोर्स, अप्लाइड फोर्स,
जो फोर्स आपने लगाई वो, और टचिंग एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया, surface in contact, you can write here like, okay, force upon it. So now pressure is equal to force upon it. Now P is equal to, what is the unit of force? Newton. What is the unit of area? Meter square. From there, Newton per meter. This is the unit of power in SI system or MKS system. But instead of Newton, if we are using kilogram meter per second square, so in this way you can also write this unit. मीटर से 1 मीटर कैंसल, ये मीटर ऊपर जाएगा, मीटर -1. नाउ मीटर पावर -1 second -2. Now this is the unit of again pressure, but this will be also in MKS system, and this unit is also called Pascal. Pascal ने बताया था इसके बारे में, तो PA से लिखा जाता है इसको, पास्कल. ओके, पास्कल. देख, बात एक ही है, ये भी बात है. इंटीजियर सिस्टम, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड माइनस. दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन इंटीजियर. ओके, चलो अब एक चीज और पढ़ते हैं. एक चीज और, ये फार्मूला दिख रहा है आपको, P इज इक्वल टू F अपॉन A. तो यहाँ पर आप इन दोनों को अलग अलग स्टडी करिए. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया. अगर एरिया कोई यहाँ पर सर्कल हो तो, किसी सर्कल का हो तो यही चीज F अपॉन पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी कि इस तरह से. अगर कोई सर्कल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं सर्कल की शेप में, एक सर्कल बोर्ड के ऊपर आपने चिपका दिया है, ऐसे प्रेस कर दिया, तो कितने एरिया पर फोर्स लग रही है? रेडियस आर पाई आर स्क्वायर. ये एरिया हो गया. अगर इसको बढ़ा दिया जाए, सर्कल को इतना बड़ा कर दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? एरिया ज्यादा हो जाएगा. एरिया ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा. और एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेशर? इफ आर इंक्रीजिंग रेडियस इंक्रीज करा, एरिया इंक्रीज. एरिया इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो इस हिसाब से थ्योरी से आपको प्रेशर कम करना है, एरिया इंक्रीज कर. जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल के फुट, डेजर्ट एरिया कैमल फुट क्या होते हैं? बड़े ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं. ब्रॉड और फ्लैट होने का मतलब क्या है? ऊंट बड़ी तेज भागता है रेत वाले इलाके में. क्यों? रेत में क्या होता है, हम भागेंगे तो हमारे पैर छोटे छोटे हैं, जूते छोटे होते हैं, वो उसके अंदर गड़ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम भाग नहीं पाते रेत. बट ऊंट भाग लेता है. क्यों? क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं वो बड़े ब्रॉड और फ्लैट होते हैं. लेंगे तो प्रेशर कम होगा, तो उसके पैर जो इमर्ज होंगे रेत में वो बहुत कम होंगे. दैट्स वाई वो फटाफट भाग लेता है और हम नहीं भाग सकते. ठीक है. कोई भी नेल है, कील कैसी होती है? ऊपर से एरिया ज्यादा और फिर ये बारीक हो जाती है. यहाँ पर एरिया कम, एरिया कम होगा, ऊपर से आपने फोर्स लगा दी, हैमरिंग कर दी. फोर्स और एरिया, फोर्स तो आपने जितने लगाने के, एरिया कम होने से क्या होगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा? आराम से लकड़ी के अंदर इमर्ज हो जाएगी.
ओके, इज इमर्स्ड इन द वुड। ठोकते हैं ना किलो को, पतली होती है, पतली साइड से ठोकते हैं, ये नहीं मोटी साइड लगा दी और वो मोटी साइड होगी तो एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ एनी फार्मूला। फार्मूले से स्टडी करिए चीजों को, फिर आपकी समझ में आएगा कहां पर क्या लगता है। अब मैंने सर्कल बना दिया, रेडियस ले लिया, तो यहाँ पर ये कोई मतलब है कि मैं डायमीटर से नहीं खेल सकता, इसको डायमीटर से नहीं खेल सकता। ये कोई है कि ये सर्कल है तो मैं यहाँ पर सर्कमफेरेंस नहीं ले सकता, इसकी ले सकता हूँ, मैं एरिया ले सकता हूँ, जो यूज होगा मैं वो ले लूंगा, क्योंकि मेरे को तो सर्कल दे दिया उसने, सर्कल दे दिया तो सर्कल की सभी चीजें अब मेरी। ओके, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है किस तरह से फिजिक्स को स्टडी करना है हमें? तो ये सारे, ओ सॉरी, अब डायमेंशन भी तो लिखनी थी, चलो डायमेंशन बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ किलोग्राम you have to write capital M, for meter capital L, for second capital T, power -1 -1, second -2 T -2, so ml -1 T -2 is the dimension of power। oh pressure पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेशर, ठीक है। पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, इसके ऊपर वर्क करेंगे, आएगा आपके कोर्स में। हाइड्रोलिक लिफ्ट, बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा लेते हैं ना जैक वैक लगाकर, या लिफ्ट में ऊपर ले जाते हैं, कहीं कहीं बिल्डिंग ऊपर ले जाते हैं, देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज में। और जो गाड़ियां होती है, बड़े बड़े ट्रक वगैरह वगैरह, कैसे रुक जाते हैं वो। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा कि प्रेशर से बनाया गया ये सारा कुछ। ओके, कैसे एक ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा पैर ऐसे लगाता है नीचे फुट पे, ठीक है, और पूरा का पूरा इतना बड़ा ट्रक इतनी स्पीड से होता है वो रुक जाता है, बस रुक जाती है, गाड़ियां रुक जाती है, कितनी स्पीड से होती है, ठीक है। वैसे पूरा आगे आ जाए वो तब नहीं रोक सकता सारा दम लगाकर, लेकिन थोड़ा सा पैर वहां पे टच करता है, तो ये वाला कंसेप्ट काम करता है, पास्कल लॉ, ठीक है। P = F/A, इस फॉर्मूले पे चलेंगे हम। ओके, चलो अब हम इन यूनिट्स और डायमेंशंस का यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, किस किस चीज के लिए। सबसे पहले यूनिट, कोई भी फार्मूला चेक करने के लिए, कुछ मैंने वीडियोस के लिंक आपको भेज रखे हैं होमवर्क पीडीएफ में, कुछ दिन पहले भेजे थे, 4-5 लिंक्स थे वो, आप उनको जरूर देखना बेटा, उसमें मैंने ये सारी चीजें समझा रखी है। बाकी इससे तो मैं समझा ही रहा हूँ। Now application of dimensional analysis, समझते हो मतलब इसका, कि जो आपने अभी डायमेंशन सीखी है उनकी एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ करते हो हम उसको, किस लिए सीखी हमने डायमेंशन एनालिसिस। पहला, check the relation, for checking the relation। कोई भी आपको फार्मूला, रिलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी फार्मूला दे रखा आपको, उसको चेक करना आना चाहिए। चेक करके आप बता सकते हो कि आइदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, चलो चेक करते हैं, कोई फार्मूला ले लेते हैं। एक फार्मूला लिख रहा हूं मैं आपके सामने, F = mv² for force। This is the formula for calculating force। F = m तो होता है, मैंने एक फार्मूला लिखा है, क्या ये भी कोई फार्मूला है फोर्स का? mv³ भी तो हो सकता है, mv²/r² भी तो हो सकता है। आपको पता नहीं है, सर हमें नहीं पता ये फार्मूला ठीक है या गलत है,
तो हमें क्या करना है, इसको चेक कर, क्या करना है, चेक कर। तो चेक करेंगे कैसे, आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt माइनस, तो राइट कर दो, we know the unit of the dimension of force is mlt minus. Now solve right hand side up, put all the dimensions of these quantities. For mass, this is mass, for mass dimension is capital N. For velocity, lt minus 1 whole square upon, for radius, radius, distance, diameter, circumference, perimeter, सबके डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ, कैपिटल। नाउ सॉल्व इट, m ब्रैकेट ओपन करिए, क्या बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन किया है, l की पावर 2, t की पावर -1 था तो t माइनस, दिस l इज इन द न्यूमरेटर लाइक दिस, पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या थी इसकी, +1। नाउ m इज इक्वल टू L2 L पावर -1 बेस सेम पावर एट t माइनस 2। नाउ अगेन राइट दिस m L2 -1 L1 रह जाएगा, t माइनस 2। नाउ दिस इज राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, mlt माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, mlt माइनस 2, दोनों सेम आए है ना, इसका मतलब दिस रिलेशन इज